Now illustration number 5, page number 536. On 1st Jan 2017, Mr. X took delivery from Mr. Y. Like Mr. X is the hirer, जो कि hire purchaser है, और Y is the vendor of 5 machines on a hire purchase system. Rupees 4,000 being paid on delivery and the balance in the 5 installment of rupees 6,000 each. 4,000 डिलीवरी के टाइम पे किया, दैट मीन्स 4,000 इज़ अवर डाउन पेमेंट, और जो बैलेंस था 5 मशीन का इंस्टॉलमेंट तो 6,000 ईच, यानी हमें इंस्टॉलमेंट दे दिया है जो कि 6,000 ईच, 5 इंस्टॉलमेंट भरेगा 6,000 हर साल एनुअली ऑन 31st December. The vendor company charges 5% interest per annum on yearly balances. Interest दे दिया है 5% per annum. The cash price of 5 machine was rupees 30,000. कैश प्राइस भी दे दिया है मशीनरी का, 5 मशीन का 30,000 है. शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन, हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है विदाउट नरेशन. असेट अकाउंट में मिस्टर वाई अकाउंट for 5 years, assuming that purchaser charges depreciation at the rate 20% on straight line method. Okay, so first of all यहाँ पे जो भी given है that we will write down and I'll calculate analysis of payment of vendor in front of you, और बाकी journal entries हम देखेंगे. It is first we will write down whatever is given. So 5 machine hire purchase system. So here they have given the installment. So first the thing is हमारा कैश प्राइस भी they have given, that is 30,000. Then इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डाउन पेमेंट दिया है 4,000, एंड देन दे सेड कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दैट इज 6,001, 6,002, 6,003, 6,004, 6,005 ऑन 1st Jan 2017 को परचेज किया. देन principal will be same for the first transaction. There won't be any interest. So the closing will be 30,000 minus 4,000, that is 26,000. A minus C. अब यहाँ पे you can give the name ABC जैसे मैंने previous videos में दिया. Then 31st सेम ईयर पे पहला इंस्टॉलमेंट होगा जो कि 6,000 का है, तो 26,000 का क्लोजिंग यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 26,000. यहाँ 26,000 यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमें दे दिया एट द रेट 5%. 26,000 का 5% इफ वी विल कैलकुलेट वी विल गेट 1,300. इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हेंस यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट. So 6,000 minus 1,300, we will get 4,700. Then we will get the closing A minus C, that is opening minus principal. 26,000 minus 4,700, we will get 21,300. In the similar manner, we will solve for the all next installment. 31 December, now 18 हो जाएगा. At the end of the each year दिया है तो 18, then 31st December 19, then 31st December 20, then 31st December 21. Okay, then यहाँ पे इसका क्लोज, ये जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ओपनिंग हो जाएगा 21,300. then इसका 5% if we will calculate we will get 1,065. then again 6,000 minus 1,065 we will get 4,935 and 1,6,365, which is opening minus principal. Similarly 1,6,365, इसका हमारे 5% if we will calculate we will get 818. then 6,000 minus 818 we will get 5,182, and the closing will be 1,1183, which is opening minus principal. Similarly next वाला, then we will calculate 5%, we'll get 559, then 5,441 will be the principal, and we will get the closing 5,742. again 5,742, then
लास्ट वाला है, सो लास्ट में वी वांट दिस बैलेंस टू बी नील। एंड ये कैसे आता है, A-C, दैट इज ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल विल बी द सेम। अब इसका जो बैलेंसिंग होगा दैट विल बी अवर लास्ट इंटरेस्ट विच इज 258. ओके, नाउ if we will calculate this, we are going to get 4000. this is our total interest. Similarly हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली जो हायर परचेज प्राइस है इज़ नथिंग बट कैश प्राइस है हमारा वो, प्लस डाउन पेमेंट सो कैश प्राइस है 30,000 प्लस डाउन पेमेंट इज 4,000, वी आर गेटिंग 34,000. दैट मीन्स यहाँ पे डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, नॉन इसमें से हम इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, सो वी विल गेट इंटरेस्ट. सो इंस्टॉलमेंट हम माइनस करेंगे, इंस्टॉलमेंट 6,000 है 5 साल के लिए, दैट इज 30,000. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 30,000 फ्रॉम 34,000, द बैलेंस we will get is nothing but interest. And the same thing we have calculated in analysis, which is 4,000. okay, now calculation of depreciation, because we will be needing depreciation amount while passing the journal entry. So calculation of depreciation. So depreciation SLM method, SLM means every year we will be charging the same amount. So the cash price is 30,000 and depreciation is at the rate 20%. So if you calculate 30,000 20%, so it is 6,000. So that means 6,000 for every year, yeah. Now let's move on to the journal entries. So journal entries in the books of X first we will pass. X is the hirer. So first I am going to pass the journal entry for the first year, which is 2017, and with the narration. Here the question is asked without narration, but for the first year I'll tell you with the narrations for the more clear understanding purpose. So the journal entry format will be the hirer is buying the machine. So पहले machine purchase हुआ है उसकी एंट्री, then hirer is paying the down payment, so उसकी एंट्री, then interest जो हम Y से खरीद रहे तो Y will charge the interest, तो इंटरेस्ट की एंट्री, देन इंटरेस्ट प्लस हमारा जो भी इंस्टॉलमेंट होता है हम जो पे करेंगे वो, एंड देन हमारा राइट ऑफ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट से. सो लेट्स मूव ऑन. सो 1 Jan 2017 को वो मशीनरी परचेज़ कर रहा है, तो परचेज़ की एंट्री, परचेज इज़ ऑलवेज ऑन द डेबिट, ठीक है, तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे. व्हाट आर वी परचेजिंग? मशीनरी. सो मशीनरी अकाउंट, और किससे परचेज कर रहे हैं? वाई से परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट. कितने में उसका जो कैश प्राइस है, फॉर ऑल दिस अमाउंट्स वी हैव टू रेफर वो वेंडर एनालिसिस वाला टेबल वी हैव टू रेफर जो हमने अभी बनाया था, विच इज़ दिस टेबल. ओके, सो फॉर ऑल दिस एंट्री वी हैव टू रेफर दिस. सो कैश प्राइस इज अबाउट 30,000, सो हमने एंट्री पास की. एट द टाइम ऑफ परचेजिंग मिस्टर एक्स विल पे द डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट जो था 4,000 का था, जो फर्स्ट डाउन पेमेंट जो था हमारा 4,000 का था. सो फॉर दैट एंट्री हमारे ऐसे पैसा जा रहा है, मिस्टर वाई को मिल रहा है. तो 1 Jan 2017 को मिस्टर वाई को पैसा मिल रहा है. मिस्टर वाईज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीन डाउन पेमेंट पेड 4,000. सो ये दो एंट्री तो हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएगी.
एंड जो हम नेक्स्ट एंट्रीज देखेंगे वो सारे ईयर में टिल 21 तक ये सारी एंट्री सेम होगी, बट अमाउंट डिफर हो गया। ओके, देन इंटरेस्ट चार्ज करेगा मिस्टर वाई। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अभी हम यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए बेसिकली लाइक खर्चा ही है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट बीन इंटरेस्ट चार्ज। अभी यहाँ पे चार्ज हुआ है, पे नहीं किया, हमने चार्ज किया, विच इज़ 1300। ये हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट किया था 1300। देन नेक्स्ट विल बी सेम 31 दिसंबर 2017 को हम अभी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, मैंने कहा था जो हमारा इंस्टॉलमेंट है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू पे। अब पे पैसा जा रहा है तो किसको मिल रहा है, मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹60,000। हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है जो है ₹6,000, नॉट 60, ₹6,000 बीन इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सिमिलरली हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, एंड जैसे कि मैंने कहा था विल चार्ज द डेप्रिसिएशन एंड देन हम राइट ऑफ करेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट से। सो 31 दिसंबर 2017 को हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था SLM से, जो कि 6,000 आया था। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हम जब असेट अकाउंट बनाएंगे दैट टाइम ये एंट्री और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए खर्चा है। सो टू मशीनरी अकाउंट बीन डेप्रिसिएशन चार्ज। यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो कि 6,000 है। 6,000 ओके, हमने अभी कैलकुलेट किया था SLM मेथड से, विच इज़ 6,000। अभी जो हमने चार्ज किया है दैट इज़ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये दोनों को हम राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट से। सो राइट ऑफ के लिए इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एंट्री इंटरेस्ट भी डेबिट में आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आ रहा है। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ये दोनों एंट्री रिवर्स लाइक क्रेडिट में आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2017 को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। और इन दोनों का जो टोटल रहेगा 6,000 प्लस 1,300, वो हम लोग 7,300 यहाँ पे ले लेंगे। सेम मैनर ये हमारा जो सेम मैनर है, सिर्फ हमने परचेज और डाउन पेमेंट तो हम एक ही बार करते हैं, तो वो एक ही ईयर में एंट्री आएगी। बाकी ये एंट्री सेम मैनर में हम लोग 2021 तक पास करेंगे, जब तक हमारा लास्ट पेमेंट नहीं हो जाता और ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है। और ये सारे अमाउंट्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो सिमिलरली आपको 1 ईयर 1 साल और मैं बता देती हूँ 2018 का। अब 31 दिसंबर 2018 सेम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट बीन इंटरेस्ट चार्ज। यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन द नरेशन, यू कैन रेफर ये वाला ईयर इन ऑर्डर टू फॉर योर दिस नरेशन रेफरेंस। देन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट। सो हमने इसका सेकेंड ईयर वाले का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, विच इज़ 1065। सो 1065। सिमिलरली 31 दिसंबर 2018 को मिस्टर वाइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हाट इज़ दिस, वो हमने इंस्टॉलमेंट पे किया। तो इंस्टॉलमेंट तो हमारे सारे साल का 6,000 ही था, तो जो कि 6,000 हमने पेमेंट किया है। देन नेक्स्ट एंट्री विल बी अगेन डेप्रिसिएशन। जो 6 SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन भी हर साल सेम ही होगा। सो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 6,000, देन प्रॉफिट राइट ऑफ की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सिमिलरली वी हैव टू पास द एंट्रीज फॉर 2019, 2020 एज वेल एज फॉर 2021। आफ्टर पासिंग दिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा हमें असेट अकाउंट में बनाए। असेट अकाउंट कौन सा है, असेट अकाउंट हमारे पास मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो दैट विल बी अवर मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेजर बनाना है। सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे भी इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन रिलेट दिस एंट्रीज विद द जर्नल एंट्री। फर्स्ट हम एक बार जर्नल एंट्री देख लेते हैं कहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट आ रहा है। सो यू कैन सी इनिशियली जब हमने परचेज़ किया मशीनरी तो वहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट आ रहा है। इफ़ फिर हमारा हर साल मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन के टाइम आ रहा है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मशीनरी अकाउंट की एंट्रीज कहीं नहीं है। ओके, सो सिमिलरली हम यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दिस इज़ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये होगी परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री।
सो मशीनरी परचेज हुआ है 1 Jan 2017 को, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट 30,000। ओके, देन सेम ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो दैट मीन्स हमें लेजर एंट्री पास करते टाइम ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आ जाएगा। सो बाय डेप्रिसिएशन 6,000। ओके, बस ये इतना ही एंट्री है, मतलब मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड इतनी ही एंट्रीज हमने पास की थी। देन हम ये क्लोज कर देंगे। 30,000 इज़ द हायर, तो ये हमारा डेबिट साइड हैवी है, 30,000 लिख दिया दोनों साइड, एंड जो भी 6,000 फिर उसमें से क्रेडिट वाला माइनस करके 6,000 वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर विच इज़ 24,000। अब ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे ब्रॉड डाउन। तो 1 Jan 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 24,000 जो हमने ये लेके गए। अभी सिमिलरली अगेन हमने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन दिया, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का आप एंट्री देखोगे। सो वी हैव दिस एंट्री ओवर हियर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट विच इज 6,000। तो सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 6,000। अगेन द हैवियर साइड इज द डेबिट वाला विच इज़ 24,000। उसमें से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करेंगे, वी विल गेट द 18,000 बैलेंसिंग फिगर। अगेन नेक्स्ट ईयर हम 18,000 लेके आएंगे, एंड इन द सिमिलर मैनर वी विल डू फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे 21 में हमारा लास्ट डाउन पेमेंट हो रहा है, ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे वी विल गेट द टैली अमाउंट। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 6,000 टोटल आया, और जो भी अमाउंट हमने ब्रॉड डाउन किया था वो 6,000। तो यहाँ पे हमारा लेजर अकाउंट टैली हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये लास्ट डाउन पेमेंट है। सो ये सम के लिए इतना ही किया था। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट डू कमेंट। काफ़ी सिंपल सा सम था। हमने पहले सबसे पहले एनालिसिस ऑफ पेमेंट ऑफ वेंडर देखा, जिसमें बहुत ही सिंपली कैश प्राइस सब कुछ इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया था। तो हमने एकदम नॉर्मली कैलकुलेशन किया है, रिवर्स कैलकुलेशन भी नहीं था, यहाँ पे एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन किया है। देन वी आर कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन। हमने जर्नल एंट्री पास किया फर्स्ट एक्स की बुक में, एंड सेम जहाँ पे मशीनरी अकाउंट था हमने उसी के मदद से मशीनरी अकाउंट की एंट्रीज पास की है। सो इट इज़ वेरी सिंपल सी। Thank you.